नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूएंट्स, जो कि जो एडजुवेंट होते हैं, जो आपका एडिटिव्स होते हैं, those which are directly compressible. I have summarized over here, so it is very important. Sometimes they used to ask question on this. So here the name of adjuvant or diluent and their comments. So first one is the dextrose. Dextrose is nothing but the D glucose. याद रखो आप, dextrose मतलब क्या, D glucose, येलो ग्लूकोज, D glucose जो होता है, तो डेक्सट्रोज इज अ कॉमन नेम फॉर डी ग्लूकोज। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज इज यूज्ड एज अ diluent or sweetening agent in the tablets. Dextrose has a trade name of Cerulose. Cerulose. ये ट्रेड नेम याद रखो आप। Cerulose is a trade name of dextrose and two forms are available: hydrated and anhydrous dextrose and hydrous dextrose. Hydrated and anhydrous, two forms are available. Okay. Sometimes it is used to replace the spray dried lactose to prevent the Maillard reaction. अगर किसी ड्रग में Maillard reaction दिखा रहा है, तो उस टाइम पे क्या करना है, जो लैक्टोज है, तो लैक्टोज इज रिप्लेस बाय डेक्सट्रोज टू प्रिवेंट द मिलर रिएक्शन। देन नेक्स्ट वन इज स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, इट इज नोन एज अ सुप्राटैप। सुप्राटैप इज अ trade name of spray dried lactose. It is prone to darkening in presence of excessive moisture, amines and other drug compound. मतलब ये स्प्रे ड्राइड लैक्टोज जो अगर है, वो आपको मिलर रिएक्शन देगा अमाइन के साथ में। अमाइन अगर ड्रग है तो उसमें मिलर रिएक्शन आएगा। मिलर रिएक्शन क्या होता है, मैंने अभी पहली स्लाइड में ही आपको बोला है, मुझे यस्टरडे लेक्चर में, जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने बोला है कि इफ यू आर यूजिंग लैक्टोज एज अ डाइल्यूएंट एंड इफ यू आर यूजिंग एनी अमाइन ड्रग इन द फॉर्मुलेशन, then the amine will react with the hydrous lactose, not anhydrous. Hydrous lactose and to form a reaction product known as a furfural-aldehyde. Furfural-aldehyde. Okay, and that reaction product is a brown color, and that's why there is a browning of tablet on the surface, and this reaction is known as a Maillard reaction or a browning reaction. Okay. Now, fast flow lactose. So it is a non-hygroscopic powder and more compressible, 3-4 times more harder than above. Okay, a fast flow lactose. Anhydrous lactose used in the amine containing drug does not show Maillard reaction. अनहाइड्रस लैक्टोज क्यों नहीं देखा मिलर रिएक्शन? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। हाइड्रस लैक्टोज जो होता है, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज जो होता है, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रहता है और वो वाटर मॉलिक्यूल अमाइन के साथ रिएक्ट होता है और फॉर्मुलाइडेट बनता है। So Maillard reaction is given by hydrous lactose and spray dried lactose, not by anhydrous lactose. जो anhydrous lactose है उसमें नहीं होगा Maillard reaction. Next one is MDEX. MDEX or it is known as a dextrates or it is known as a cellulotype. Okay. So they are the hydrolyzed starches. जो starch होता है आपको, उसको hydrolysis करने के बाद जो product मिलता है उसको बोलते हैं hydrolyzed starch. So basically they contain 90 to 92% dextrose and 3 to 5% maltose. These can be used in the place of mannitol. Mannitol जो chewable tablets में यूज करते हैं अपन, mannitol, ठीक है, but mannitol is an expensive diluent and these MDEX and cellulotype they can be used instead of mannitol in the chewable tablet because of their sweetness and smooth feeling. ये फीलिंग भी देगा माउथ में अच्छा और सस्ता भी है mannitol से, तो कभी कभी ये भी यूज कर लेते हैं mannitol की जगह। But remember, mannitol is most widely used sweetener in the chewable tablets. Okay, याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, मैंने 2-3 बार बोला है अभी तक। Now next one is sucrose, directly compressible sucrose. मतलब इसको क्या है कि इसको डायरेक्टली कंप्रेसिबल कर सकते हैं सभी डायल्यूएंट्स को। तो सुक्रोज का कौन सा है, शुगर टैप आता है। शुगर टैप उसका ट्रेड नेम है। 90 to 93% सुक्रोज होगा इसमें, 7 to 10% इनवर्ट शुगर होगा। देन डाईपैक नाम का एक आता है सुक्रोज का ट्रेड नेम। डाईपैक में क्या होगा, 70% सुक्रोज होगा, 97% सुक्रोज, 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रिन्स। न्यू टॉप बोल के एक आता है, न्यू टॉप, न्यू टॉप सुक्रोज। ओके, न्यू टॉप सुक्रोज, न्यू टॉप इज अ ब्रांड नेम ऑफ योर सुक्रोज, डायरेक्टली कंप्रेसिबल सुक्रोज। सो 95 सुक्रोज रहेगा, उसमें 4% इनवर्ट शुगर रहेगा। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, मैच द फॉलोइंग टाइप, इसलिए ये इंक्लूड किया है। स्टार्च, corn starch, potato starch, they are not nowadays used in the tablet. Directly compressible starch, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, star RX 1500, star RX 1500. This one is a directly compressible form of starch, and there was a question on GPAT on this. So free flowing, it is a free flowing
Directly compressible starch commercially available. It can be used as a binder, disintegrant. It is a self-lubricating. It contains 10% moisture, hence prone to softening when combined with the magnesium stearate. आपको इतना याद रखा है कि डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च जो होता है वो कौन है? स्टार RX1500. Then DCP, dicalcium phosphate. Dicalcium phosphate is an inorganic diluent which is directly compressible. Then AV cell, MCC. AV cell क्या है? It is a microcrystalline cellulose. ये as it is question आया था GPAT में. So microcrystalline cellulose is also known as AV cell. Or the brand name of microcrystalline cellulose is AV cell. GPAT 2019. So microcrystalline cellulose available in two grades. Okay, unique diluent produces cohesive compact. It also act as a disintegrant. Okay, so ये microcrystalline cellulose के दो ग्रेड होते हैं, PH 101 that is in a powder form and PH 102 that is in a granule form. आपके लास्ट में ये जो लाइन देखो यहाँ पे लास्ट में PH 101 form of your AV cell is a powder and PH 102 is a granule. ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है. GPAT 2019 में इसके बारे में क्वेश्चन था. So AV cell is known as a microcrystalline cellulose. It occurs in a two form. It is used as a diluent. It is used as a binder. It is used as a disintegrant. Okay. इज दैट क्लियर और नॉट? ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बुक में भी है, पूरा पूरा आप इसको रट लो. जैसे याद करना है वैसे याद करो. कोई ट्रिक है तो कोई ट्रिक लगाओ, नहीं लगाना है तो याद करो. लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट वन इज एक्सिपिएंट यूज्ड इन द कंट्रोल रिलीज टैबलेट. कंट्रोल रिलीज टैबलेट में क्या एक्सिपिएंट यूज करते हैं? सस्टेन रिलीज में क्या यूज करते हैं उसका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो कंट्रोल रिलीज में कौन से एक्सिपिएंट आप यूज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे उसका चार्ट है. हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, पीएच डिपेंडेंट एंड सरफेस एक्टिव. कंट्रोल रिलीज मतलब क्या होता है आपको ये समझना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने एक टैबलेट बनाया है, 25 मिलीग्राम ड्रग है उसमें इथाइल एस्ट्राडायोल. ठीक है, और टैबलेट दिया तो वो टैबलेट ब्रेक होगा, रिलीज होगा ड्रग, वो एब्सॉर्ब होगा और अपना एक्शन दिखाएगा. ये हुआ है कन्वेंशनल टैबलेट. मान लीजिए कि आपने कंट्रोल रिलीज बनाया कि 100 मिलीग्राम ऑफ इथाइल एस्ट्राडायोल टैबलेट. अभी कंट्रोल रिलीज कैसा है? तो उसमें आपको पीएच डिपेंडेंट पॉलीमर्स यूज करना पड़ता है. कि मतलब ये पीएच डिपेंडेंट मतलब इमीडिएटली स्टमक में जाके इतना अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज करेगा, उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाके इतना अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज करेगा, या फिर आप उसका प्रोलॉन्ग यूज भी कर सकते हो. तो पीएच डिपेंडेंट, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, सरफेस एक्टिव, सो दिस काइंड ऑफ एक्सिपिएंट आर यूज्ड इन द कंट्रोल रिलीज टैबलेट. So hydrophilic excipient, acrylic acid derivative, carboxymethyl cellulose CMC, ethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl methyl cellulose, that is HPMC. Then polyacrylic acid, polyvinyl pyrrolidone, polyethylene glycol. So these are the hydrophilic control release tablet excipient. Then hydrophobic, for example, carnauba, glyceryl monostearate, glyceryl palmitostearate, then hydrogenated vegetable oils, paraffin, white wax, etc. So these are the hydrophobic control release excipient. pH dependent, ये important है. cellulose acetate phthalate, CAP, cellulose acetate phthalate, it is used as a enteric coating polymer. याद रखो इसके बारे में क्वेश्चन आया था. cellulose acetate phthalate is a enteric coating polymer. ठीक है, that is a pH dependent enteric coating polymer. मतलब क्या कि ये जब ये tablet made up of this cellulose acetate phthalate, it will not disintegrate in the stomach. ये stomach में disintegrate नहीं होगा. So we was discussing about the control release excipient. We have seen the hydrophilic, hydrophobic. Now pH dependent, cellulose acetate phthalate, it is a pH dependent enteric coating polymer. ये enteric coating polymer है, pH dependent है. ये enteric coating polymer यूज करके अगर आपने टैबलेट बनाया तो वो टैबलेट एसिड में डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, एसिड में रिलीज नहीं करेगा, मतलब स्टमक में वो ड्रग रिलीज नहीं करेगा, वो रिलीज करेगा इंटेस्टाइन में. सो पीएच डिपेंडेंट सेलुलोज एसिड थैलेट, देन हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एचपीएमसी, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट, पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट, पीवीएपी, शेलैक एंड जेइन. ये सब पॉलीमर्स है. दोज पॉलीमर्स आर पीएच डिपेंडेंट, मतलब एक पीएच पे वो ड्रग रिलीज नहीं करेंगे, दूसरे पीएच पे वो डिग्रेड हो जाएंगे और रिलीज करेंगे. देन सरफेस एक्टिव एजेंट लाइक प्लूरोनिक्स, ये क्या है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखो सिर्फ, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट वन इज अ कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट इन द टैबलेट. सो बल्क स्वीटनर्स. ओके, सो बल्क स्वीटनर कौन से यूज करते हैं? कॉम्प्रेसिबल शुगर्स, कॉन्फिक्शनर शुगर्स, डेक्सट्रोज, ग्लिसरीन, लैक्टोज, लिक्विड ग्लूकोज, मैंटोल, सॉल्पिटॉल, सुक्रोज, xylitol.
So these are the bulk sweetener. Okay. Now these are the bulk sweetener or sugars. Now what are the intense sweetener? ज़्यादा sweetness दिखाएगा, मतलब इसका अमाउंट कम रहेगा लेकिन स्वीटनेस ज़्यादा रहेगा, इसका अमाउंट भी ज़्यादा रहेगा स्वीटनेस भी रहेगा. तो इंटेंस स्वीटनर्स कौन है? असो क्या, असल्फम, पोटेशियम, देन aspartame, saccharin, sodium saccharin, then sodium cyclamate. These are the artificial sweeteners. Okay, aspartame, saccharin, sodium cyclamate. These are the artificial sweeteners. They have their own disadvantages. जैसे आपका सैकरिन है, सैकरिन सोडियम इज अ कार्सिनोजेनिक इन नेचर, याद रखो. सैकरिन सोडियम इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, इज अ कार्सिनोजेनिक इन नेचर. इसका स्वीटनेस कितना है, रिलेटिव स्वीटनेस कितना होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. जैसे जीपैट 21 में क्वेश्चन आया था, तो उसके बारे में भी देखेंगे अपन, डोंट वरी. नेक्स्ट वन इज अ टैबलेट डिफेक्ट्स. टैबलेट बनाने के बाद में उसमें बनाने के बाद में उसका कितना डिफेक्ट्स आता है. टैबलेट बनाया आपने, लेकिन आपने देखा उसमें कि यार ये टैबलेट बनाए लेकिन इसके एजेस निकल गए, या फिर टैबलेट बनाया लेकिन उसका ऊपर वाला एक लेयर ही निकल गया. टैबलेट बनाया आपने, कंप्रेस किया, लेकिन उसमें क्या हो गया कि कलर वेरिएशन आ गया, लैमिनेशन आ गया. सो देर आर डिफरेंट tablet defects which are very important for GPAT exam. So name of defect, reason and remedy. It is summarized over here. First one is a capping. Capping, what is meant by capping of tablet? So partial or complete separation of top or bottom crowns from the tablet is known as a capping. अगर टैबलेट के ऊपर वाला कोई पार्ट निकल जाता है या फिर नीचे वाला पार्ट कोई निकल जाता है, कैप कैप जैसे होता है ना आपका, कैप कैप निकला है, उसको बोलते हैं कैपिंग. बट व्हाई दिस प्रॉब्लम ऑकर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग? इट इज ड्यू टू द एयर एंट्रैपमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. अगर ग्रेन्यूल्स में एयर एंट्रैप हो गया ड्यूरिंग पंचिंग, तो आपके टैबलेट में कैपिंग आ सकता है. तो इट इज ड्यू टू डिफॉर्मेशन आफ्टर कंप्रेशन. इट इज ऑल्सो ड्यू टू डिफॉर्मेशन आफ्टर कंप्रेशन. मतलब कंप्रेशन करने के बाद बाद में अगर वो जो मटेरियल है टैबलेट, उसमें अगर डिफॉर्मेशन आ गया तो उसमें भी आपका कैपिंग आ सकता है. ओके. एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द यूज ऑफ कॉन्केव पंचेस. जो कॉन्केव पंचेस होता है आपका, उसका ज्यादा यूज करेंगे तो कैपिंग आ सकता है आपको. ठीक है. मीन्स देर आर द रीजन फॉर कैपिंग. व्हाट आर द रीजन? एयर एंट्रैपमेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, then deformation after compression, then use of concave punches. Okay. और एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स. ये रीजंस है उसके लिए, कैपिंग के लिए. नाउ आपको रीजंस मालूम है, आपको रेमेडी इमीडिएटली मिल जाएगा. ठीक है. कैपिंग एंड लेमिनेशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय. ठीक है, पहले कैपिंग हुआ, लेमिनेशन देख लेते. लेमिनेशन क्या है? सो लेमिनेशन ऑफ टैबलेट मीन्स separation of tablet into two distinct layer. Separation of tablet into two or more distinct layer, that is known as the lamination of tablet. They are the defect in the processing. आपने टैबलेट बनाया, उसके बाद में बनने के बाद में टैबलेट देखा तो उसको डिफेक्टिव बन गया, तो कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं? कैपिंग ले आ सकता है, लैमिनेशन आ सकता है. लैमिनेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर. ओके. नाउ व्हाई दिस लैमिनेशन हैपेंस? Okay, insufficient amount of or improper use of binder or lubricants, incorrect use of set of dies and punches, high speed of thread, मतलब मशीन का स्पीड ज्यादा है, उसमें लेमिनेशन आ सकता है. ये रीजन है. नाउ व्हाट आर द रेमेडीज फॉर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? जैसे कैपिंग और लेमिनेशन कैन बी अवॉइडेड बाय और कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्री कंप्रेशन, स्लोइंग द टैबलेटिंग रेट. प्री कंप्रेशन करो छोटा सा और बाद में फाइनल कंप्रेशन करो, कैपिंग लेमिनेशन नहीं आएगा. ठीक है. अगर टैबलेट मशीन का स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम करो. सो स्लो डाउन द टैबलेटिंग रेट, स्लो डाउन द टैबलेटिंग मशीन, रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर. जो कंप्रेशन प्रेशर का होता है, जो आप लोड अप्लाई करते हो कंप्रेशन के लिए, उसको कम करो, आपका लेमिनेशन कैपिंग नहीं आएगा. यूज ऑफ फ्लैट पंचेस उसको कैपिंग क्यों आ रहा था? यूज ऑफ बिकॉज ऑफ कॉनकेव पंचेस. तो यू हैव टू यूज फ्लैट पंचेस, कैपिंग नहीं आएगा. Then keep some moisture in the granules. Use sorbitol or polyethylene glycol. Capping was due to excessive drying of granules, so you can keep some moisture in the granules by using sorbitol or polyethylene glycol. Then lamination was due to improper lubricant or insufficient amount of binder and all. So use proper binder to remove the lamination. Use properly lubricated set of tooling. Then use correct set of tooling to reduce the use correct set of tooling, because lamination was due to the incorrect use of your dies and punches. So use proper tooling, then reduce the
speed of tableting machine. So ये दोनों रीजंस होते हैं, ये दोनों डिफेक्ट होते हैं कैपिंग एंड लैमिनेशन। उसके रीजंस क्या है और उसका रेमेडी क्या है ये भी दिया है, बुक में भी अवेलेबल है। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये कैपिंग के ऊपर भी आता है, लैमिनेशन के ऊपर भी आता है। तो ये आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को याद भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टिकिंग स्टिकिंग पिकिंग sticking and picking of tablet. So what are they? So what is the sticking and picking? So first one is sticking. So tablet material tends to adhere to the die of wall. मतलब क्या कि आपने जो ग्रैन्यूल्स आ रहा है आपका ऑपर में से टैबलेट पंचिंग के लिए आपके डाई कैविटी में, तो जब पंचिंग होता है, पंचिंग होने के बाद कोई मटेरियल स्टिक कर जाता है, जो पंचेस वो पंच करने के बाद ऊपर वाला पंच ऊपर जाएगा और नीचे वाला नीचे जाएगा, मतलब punch will be dissociated from the die cavity. After dissociation, if there is a sticking of material to the punch or lower punch or upper punch, that is known as a sticking. The tablet material can tends to adhere or to stick with the die wall. That is known as a sticking. Okay, that is because of the improper drying of granules or improper lubrication of granules. So oily or waxy material अगर होता है तो उसमें भी sticking आ जाता है. So you have to dry the granules properly, lubricate it and add sorbent in the formula to avoid the sticking. Now next one is a picking. Picking क्यों होता है? The surface of material, the surface material from the tablet that is sticking to the wall of the die is removed from the tablet surface by punch. क्या होता है स्टिकिंग और पिकिंग में? क्या होता है स्टिकिंग मतलब क्या कि टैबलेट का जो मटेरियल है वो स्टिक करता है किसको, जो डाइज है, डाइज के वाल है, जो डाई कैविटी का वाल है उसको, ठीक है। पिकिंग मतलब क्या, पिकिंग मतलब क्या होता है, पिकिंग मतलब जो अगेन वो स्टिकिंग के जैसे ही पिकिंग है, बस नाम अलग दिया है। क्योंकि ये पिकिंग क्या होता है कि अगर वो मटेरियल स्टिक हो गया किसको, अपर पंच को, तो उसको बोलेंगे पिकिंग। और वो मटेरियल अगर स्टिक हो गया आपके डाई वाल को तो उसको बोलेंगे स्टिकिंग। सो पिकिंग मीन्स द सरफेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट that is sticking to the wall of the die is removed by the upper punch. ओके मतलब जो स्टिकिंग हो रहा था वो स्टिकिंग कभी कभी अपर पंच भी लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं पिकिंग। मतलब पिक करता है वो जो भी स्टिक हुआ मटेरियल है जो डाइस कैविटी को, वो अगर अपर पंच ने पिक किया तो उसको बोलेंगे पिकिंग। And now it is because of the engraving and embossing of letter on the punches। जो होता है किसी किसी का ब्रांड होता है ना, पीसीएम, पैरासिटामोल के टैबलेट के ऊपर एक ये आएगा आपको, एक लेटर आएगा पीसीएम, ठीक है। तो पीसीएम का लेटर क्या होता है, वो जो डाइज होता है अपर पंच जो होता है उसके अपर पंच के कॉन्केव सरफेस पे उसका एम्ब्रॉयसिंग किया होता है, एनग्रेविंग किया होता है। तो कभी कभी क्या होता है मटेरियल उसको स्टिक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पिकिंग, बिकॉज ऑफ एनग्रेविंग एंड एम्बॉसिंग ऑफ द लेटर ऑन द सरफेस ऑफ पंचेस, improper drying of granules due to low melting lubricants। ये रीजन है पिकिंग के लिए, मतलब एम्ब्रॉयडरी के कारण हो सकता है, इम्प्रॉपर ड्राइंग अगर ग्रैनुल को गया तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ड्यू टू लो यूज ऑफ लो मेल्टिंग लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए रेमेडी क्या है, ये एम्ब्रॉयडिंग ग्रेविंग वगैरह हटा दो, ग्रैनुल्स प्रॉपर्ली ड्राई करो, हाई मेल्टिंग लुब्रिकेंट यूज करो। सो polish the die and punches properly where does not where the it will not, then dry the granules properly, use the high melting point lubricants, cool the machine. So that is the remedy to avoid the picking. Now next one is chipping. We have seen the sticking, we have seen the picking. Now next one is chipping. Okay, we have seen the capping, lamination, then sticking, picking, now chipping. Breaking of tablet edges, जो टेबलेट का एज होता है राउंड राउंड एज, वो अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलेंगे चिपिंग। सो ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस आफ्टर लिविंग द टेबलेट प्रेस, जब टेबलेट पंच होके टेबलेट जब बाहर निकलता है उसका एज अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलेंगे चिपिंग ड्यूरिंग द लिविंग द प्रेस और ड्यूरिंग द हैंडलिंग। ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एज ड्यूरिंग लिविंग ऑफ टेबलेट मशीन और ड्यूरिंग हैंडलिंग, अगर उसका एज ब्रेक होता है तो उसको बोलेंगे चिपिंग। इट इज ड्यू टू, it is because of sticking, or it may be because of excessive drying of granules, or it is because of too much binding agent. So remove all the hindrance.
use properly dry granules or lubricate it, moisten the granule, then optimize the formula for dry binders. That are the remedy. Next one is a double impression. ओके लाइट आ गई. नेक्स्ट वन इज डबल इंप्रेशन. डबल इंप्रेशन में क्या होता है? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेक्ट इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. ओके, इट इज ड्यू टू द प्री रोटेशन ऑफ punches which have engraving or monogram on the face. During the pre-travel, punches rotates and makes double impression at the bottom of. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, डोंट वरी. डबल इंप्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका टैबलेट ग्रैन्यूल्स आ गया हॉपर में, हॉपर से डाई कैविटी में. अपर पंच आएगा, लोअर पंच आएगा, कंप्रेस करेगा टैबलेट को. ठीक है, अपर पंच मूव हो जाएगा, ये होता है नॉर्मली, टैबलेट इजेक्ट हो जाएगा. लेकिन डबल इंप्रेशन में क्या होता है कि अपर पंच के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होता है या फिर जो भी मोनोग्राम या फिर जो भी स्टैम्प होता है, जब वो प्रेस करेगा आपके टैबलेट को और निकल जाएगा, तो फिर से वो बाय मिस्टेक फिर से आता है अपर पंच, वही पंच, और वही पंच टैबलेटिंग मशीन को, वही टैबलेट को दोबारा पंच करता है, तो उसको बोलते हैं डबल इंप्रेशन. दिस इज ड्यू टू द प्री रोटेशन ऑफ अपर पंच which have engraving or monogram on the face. During the pre-travel, punch rotates and makes a double impression on the bottom of tablet. That is a double impression. So it is due to the pre-rotation of either upper punch or lower punch during ejection of tablet. So what do you have to do to overcome this problem? Insert a key. Allow keying is the remedy. कीइंग इज द रेमेडी. मतलब यहाँ पे की आपको इंसर्ट करना है. इंसर्ट द की अलाउडेड इनसाइड द पंच टू प्रिवेंट द फ्री रोटेशन ऑफ द पंच. जो पंच का फ्री रोटेशन हो रहा है उसको ऐसे डबल इंप्रेशन आ रहा है, उसमें एक आपको थोड़ा बहुत आपका मतलब इट इज अ हाउस होल्ड रेमेडी. मतलब आपके जो होता है नॉर्मली जो मशीन ऑपरेटर होता है उसके पास उसके घर की चाबियां होती है, कीज होती है, तो वो की निकाल के वो अपर पंच में लगा देगा ताकि वो उसका फ्री रोटेशन नहीं हुआ और डबल इंप्रेशन नहीं हुआ. सो कीइंग इज द रेमेडी. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, डबल इंप्रेशन. और यू कैन यूज न्यूअर कंप्रेशन मशीन एंड दैट कम्स विद द एंटी रोटेटिंग डिवाइसेस व्हिच प्रिवेंट द फ्री रोटेशन ऑफ पंचेस. जो आजकल नए मशीन है उसके में भी फ्री रोटेशन जो होता है अपर पंच का लोअर पंच का वो अवॉइड होता है, वो नहीं होता है. दैट इज अ डबल इंप्रेशन. नेक्स्ट वन इज चिपिंग. चिपिंग जो है वो ऑलरेडी अपन ने देखा है. लास्ट वन इज अ मॉडलिंग. मॉडलिंग इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी जीपैट में. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट सरफेस इज नोन एज अ मॉडलिंग. ठीक है, अगर कलर टैबलेट है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज अ मॉडलिंग. ओके, so what is why there is a modeling on the tablet? color color drug along with colorless excipient अगर यूज करेंगे, मतलब एपीआई है आपका. मान लीजिए कि आप सल्फोनामाइड का टैबलेट बना लें. सल्फर ड्रग को मोस्ट ऑफ द टाइम येलो कलर होता है. ठीक है, तो वो येलो कलर का ड्रग है और कलरलेस एक्सपिएंट आप यूज करेंगे, मैनिटोल मैनिटोल यूज करेंगे या फिर डेक्स्ट्रोज यूज करेंगे, वो कलरलेस होता है. तो वो अगर यूज करेंगे तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, this mottling problem occurs, okay, due to use of color drug along with colorless excipient or improper mixing of dye, especially in the direct compression. Improper mixing of dye, कलर जो है डाइज एंड लेग्स, वो अगर ब्लेंड में अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो गया उसका, तो उसकी वजह से भी मॉटलिंग आ सकता है. इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर एंड बाइंडिंग सॉल्यूशन, उसकी वजह से भी मॉटलिंग आ सकता है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द मॉटलिंग. नाउ व्हाट इज द रेमेडी? यूज अप्रोप्रिएट कलर. प्रॉपर कलर यूज करो, मिक्स प्रॉपरली मिक्स करो. इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से हो रहा है तो while mixing add acacia powder to the acacia powder or trachan powder to mix the well. अगर मिक्सिंग की वजह से हो रहा है तो उसमें acacia पाउडर यूज कर सकते हो आप, ट्रैकन पाउडर यूज कर सकते हो, सो दैट इट विल बी मिक्स प्रॉपर्ली एंड देयर विल बी नो मॉटलिंग. ये जो टैबलेट डिफेक्ट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है. मॉटलिंग इंपॉर्टेंट है आपका. हाँ ठीक है, मॉटलिंग इंपॉर्टेंट है. उसके बाद स्टिकिंग पिकिंग डबल इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है. स्टिकिंग एंड लेमिनेशन, कैपिंग एंड लेमिनेशन, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैपिंग लेमिनेशन, उसके बाद आपका स्टिकिंग पिकिंग, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो उसको, ये भी कभी पूछ लेता है. देन चिपिंग, चिपिंग के बारे में कभी पूछा नहीं है लेकिन डबल इम्प्रेशन के बारे में पूछा है. कीइंग, ठीक है.
उसके बाद में ये जो होता है आपका मॉडलिंग, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन इज टैबलेट कोटिंग। मुझे लगता है ये अपन लेंगे बाद में ट्यूसडे को, या फिर आपको देखते हैं, या फिर इवनिंग में अगर पॉसिबल है तो ये लेंगे टैबलेट कोटिंग। जो टैबलेट कोटिंग होता है वो क्यों करते हैं, किस टाइप का टैबलेट कोटिंग होता है, शुगर कोटिंग क्या है, फिल्म कोटिंग, ठीक है मैं ले लेता हूँ, चलो जाना। नाउ जस्ट वेट अ मिनट। So tablet coating means what? You have to coat your tablet by using a different kind of polymers. But why there is need of coating of tablet? Tablet coating is done for what are the reason that that are the required, why, what are the reason behind the tablet coating? tablet का coating क्यों करना है आपको, कि डायरेक्टली कंप्रेस किया tablet आपने वैसे यूज करो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर सिंपली कंप्रेस टेबलेट के। क्या ड्रॉबैक्स है? फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रग बहुत ही बिटर है, इंटेंसली बिटर है, तो आपने अगर टैबलेट ले लिया, टैबलेट रखा मुंह में, तो आपके मुंह में पूरा बिटरनेस आ जाएगी। तो इंस्टेड वो एक ड्रॉबैक है, पैलेटेबिलिटी। उसके बाद एंट्री कोडिंग, अगर आपको टैबलेट टैबलेट में जो ड्रग यूज कर रहे हैं आप, वो ड्रग एसिड में डिस्ट्रॉय होता है, मतलब वो ड्रग आप जब टैबलेट लेंगे स्टमक में जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसका यूज क्या है, वो बायो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ड्रग टू prevent the drug degradation in the stomach, you have to use entry coating, likewise that. So tablet coating is done for, कि मान लीजिए कि आपने फिल्म कोटिंग किया टैबलेट के ऊपर। फिल्म कोटिंग मतलब एक थिन फिल्म होता है टैबलेट के ऊपर, ठीक है। तो वो टैबलेट आप मुंह में रखोगे 10 मिनट तक तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, मतलब क्योंकि उसके ऊपर फिल्म लगा होता है, वो डायरेक्ट आपका जो सलाइवा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता टैबलेट के और एपीआई के, तो उसके लिए आपको बिटरनेस नहीं आएगा। तो द टैबलेट कोटिंग इज डन फॉर रीजंस। फर्स्ट, to mask the taste or odor or color of drug. That's why tablet coating is done. Tablet coating is done for to mask the taste, to mask the bad odor of that your drug, or bad color, or second, to provide the physical and chemical protection of drug. मान लीजिए कि आपका सिंपली कॉम्प्रेस टेबलेट है, और वो टैबलेट अगर एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट का जो कंडीशन है वो मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर सकता है टैबलेट, वो टैबलेट खराब हो जाएगा, या फिर वो टैबलेट डिग्रेड हो सकता है लाइट की वजह से। तो इन दैट केस फिल्म कोटिंग विल ऑफर यू द प्रोटेक्शन टू प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग। Then next one is to protect the drug from gastric environment of the stomach. So in that case you have to use entry coating to avoid the incompatibilities between the drug in the tablet. अगर टैबलेट में दो एपीआई है, दो ड्रग है डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका इनकम्पेटिबिलिटी अवॉइड करने के लिए क्या करो, एक ड्रग ले लो, उसका छोटा टैबलेट बनाओ, उसको कोटिंग करो, दूसरा ड्रग ले लो, फिर बाद में उसका फाइनल कंप्रेशन करो, to avoid the incompatibilities of drug. To improve the pharmaceutical elegance, यूज ऑफ स्पेशल कलर एंड कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंटिंग। मतलब होता है ना, अगर आप एकदम पूरा ब्लैक कलर का टैबलेट है आपके पास, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और आपको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये करोगे आप। मतलब अगर वही टैबलेट एक स्पेशल पिंक कलर का टैबलेट है, तो यार आपको दिखने में बहुत अच्छा लगता है, आप इजीली जाके लोगे वो टैबलेट खाओगे। लेकिन वही टैबलेट अगर ब्लैक कलर का होगा तो आपको अच्छा नहीं लगता वो। ओके, टू इम्प्रूव द pharmaceutical elegance to use by using of special color and contrasting printing. Tablet must be resistant to the abrasion, chipping or coating process. Now, what are the different coatings? Sugar coating of tablet, it is very important, and a lot of times they have asked the question on this chart. This chart is very important. I'm telling again. Sugar coating of tablets. So tablet coating involves different type of coating: sugar coating, film coating, entry coating, etc, etc. Okay, so in that we will see the first sugar coating of tablet. तो शुगर कोटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसको प्रॉपरली समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ बुक में दिया है, लेकिन एक होता है ना कि आप पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, दूसरा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बहुत एडिशनल कंटेंट भी डाल देता हूँ कभी उसमें, अगर मुझे लगता है कि कम है तो। नाउ, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट। फर्स्ट स्टेप इज अ सीलिंग, second step is a subcoating, third step is a syrup coating, fourth step is a finishing, and fifth step is a polishing.
यहाँ पे आप माउस के ऊपर ध्यान दो। फर्स्ट स्टेप इज अ सीलिंग और सील कोटिंग, सेकंड स्टेप इज अ सब कोटिंग, थर्ड स्टेप इज अ सिरप कोटिंग, फोर्थ स्टेप इज अ फिनिशिंग और पॉलिशिंग। इस स्टेप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेप्स है आपका शुगर कोटिंग का, याद रखो वो सब स्टेप्स। ठीक है, तो हर एक स्टेप में क्या होता है ये आप देखेंगे अभी। सो फर्स्ट वन इज अ सीलिंग और कोटिंग, सीलिंग और सील कोटिंग। सो सीलिंग और सील कोटिंग मतलब क्या, टू प्रिवेंट द moisture entry into the tablet core is a seal coat is applied। मान लीजिए आपका पास एक टैबलेट है, उसके लिए आपको सिरप कोटिंग करना है। तो सिरप में क्या है, सिरप में 66% शुगर है और बाकी वाटर है। तो अगर वो वाटर आपके ड्रग को अफेक्ट ना कर पाए, ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपको, एक इनपरमिएबल सील डेवलप करना है टैबलेट के ऊपर पहले। तो पहले सील कोटिंग होता है, सील कोटिंग होता है ताकि जो भी सिरप कोटिंग करने वाले आप, दैट शुड नॉट अफेक्ट द योर मेन ड्रग, ओके, और मेन टैबलेट। सो फॉर दैट सीलिंग इज डन, सील कोटिंग इज डन। सो सील कोटिंग इज डन बाय यूजिंग शेलैक। शेलैक नाम का एक पॉलीमर है, उसको यूज करते हैं। सो इट इंक्रीजेस द डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम। शेलैक यूज करते हैं, जीन यूज करते हैं, जीन। सो सील कोटिंग इज डन बाय यूजिंग शेलैक। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया था एक बार जीपैट में। सो इन केस ऑफ sugar coating of tablet, seal coating is done using one of the following polymer. So shellac is there, Jane is there. So remember, okay. So now because of this seal coating, dissolution and disintegration time of tablet may increase, or most of the time it increases. Okay. तो याद रखो जीन एंड शेलेक। नाउ सेकंड स्टेप इज सब कोटिंग। सब कोटिंग में क्या होता है, it is the main aim of this subcoating is to round the edges of tablet and build up the tablet size। ओके, टेबलेट का साइज बढ़ाना है और जो टेबलेट के एज होते हैं वो राउंड करना है उसको। मतलब एक फ्लैट टेबलेट है तो उसका एज जो है वो शार्प होगा, तो उसको सिरप कोटिंग की वजह से उसको राउंड कर देंगे। ठीक है, राउंड कर देंगे, टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड द टेबलेट साइज। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कोटिंग इज डन फॉर टू राउंड द टेबलेट एजेस एंड टू बिल्ड अप द साइज ऑफ टेबलेट। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है एक बार। So there will be increase in the weight of tablet up to 50 to 100%। ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन वेट बाय 50 to 100%, मतलब क्या, डबल वेट हो रहा है। सो सब कोटिंग विल कॉज डबलिंग weight of tablet, so tablet weight will be doubled in which of the following state, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। which of the following step of sugar coating there will be increase in the weight of tablet by 50% or there will be doubling of weight, so that is nothing but the sub coating। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ये इसलिए आप यही पे क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज अ कंट्रोल ऑफ ड्राइंग रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ड्यूरिंग दिस अप्लाइंग ऑफ सब कोटिंग। जब सब कोट अप्लाई करते हो तब टेम्परेचर आपको याद रखना है, ड्राइंग रेट याद रखना है, अच्छे से कंट्रोल करना है। तो ये छोड़ो, लेकिन ये याद रखो क्या, कि द एम ऑफ सब कोटिंग इज टू राउंड द एजेस एंड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ टेबलेट एंड टेबलेट वेट में बी इंक्रीज अप टू 50% और 100% और मे बी डबलिंग ऑफ वेट विल बी देयर। नाउ थर्ड स्टेप इन द शुगर कोटिंग, दैट इज नोन एज सिरप कोटिंग, or it is also known as a smoothing, or it is known as a coloring। Okay, so color is added in this step। Okay, so color is added in the which or one of the following steps of sugar coating, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जीपैट में। तो कौन सा स्टेप है, सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग के टाइम पे आप कलर ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टेप, टू फिल द imperfections ऑफ टेबलेट कॉज्ड बाय सपोर्टिंग की वजह से जो इम्परफेक्शन बचा है उसको फिलअप करने के लिए आपको सिरप कोटिंग करना है। ओके, यहाँ पे 6 और 7 कोट्स ऑफ सिरप इज गिवन। ठीक है, सिरप कोटिंग में to impart a desired color to the tablet, so colorant is added in the syrup coating during the syrup coating। इसको स्मूथनिंग कहा गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्शंस जो होते हैं सब कोटिंग का वो फिलअप किया जाता है, उसके लिए स्मूथनिंग कहा जाता है। और कलर भी ऐड किया जाता है इस स्टेप में। कलर इज अप्लाइड व्हेन टेबलेट इज स्मूथ टू अवॉइड द मॉडलिंग like appearance। Okay, and this step required high skill syrup coating। is that clear to you or not? ये GPAT 2019 में as it is क्वेश्चन था, color is added in the one of the following step of sugar coating। ये आपको सीलिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, फिनिशिंग लाइक दैट।
अरे ये बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है और ये सब अभी से ही क्लियर करो, बाकी बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप इज अ फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब क्या? फ्यू कलर कोड्स ऑफ सिरप में बी applied in this step, also known as a final syrupping. ओके, फिनिशिंग मतलब अगर इसमें कुछ बचता है उसमें आप कर सकते हो ऐड, ठीक है। लेकिन ये याद रखो, सिरप कोटिंग कलर इज एडेड इन द सिरप कोटिंग, देन 5 to 7 coats of syrup is given in the subcoating to round the edges or to build up the tablet size. Tablet size can be increased by double in this step. Seal coating क्या है? To prevent the moisture penetration into the tablet core. That is a seal coating, and it is done by shellac or gene. That is a water impermeable polymer, water insoluble polymers. Polishing, last step is polishing to get a desired luster, to get a desired view or to get desired side of your tablet. Luster desired करने के लिए polishing is done by using beeswax or carnauba wax. ये याद रखो, polishing is done by beeswax or carnauba wax. इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और solution of this is soluble in the volatile solvent. Polishing is done by using carnauba wax or beeswax, याद रखो. So it is used to desired luster. कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, कि आपको एक साइड में देंगे, एक कॉलम में स्टेप्स ऑफ शुगर कोटिंग, दूसरे साइड में देंगे उसका 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 इंफॉर्मेशन देंगे, तो बोलेंगे मैच द फॉलोइंग और फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द शुगर कोटिंग एंड देयर पर्पस। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आ सकता है। मैं बोलता हूँ ये करना ही चाहिए, आपको पूरा रटना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स। फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स यूज्ड इन द टैबलेट कोट। आप देख लो कि फिल्म कोटिंग क्यों करते हैं टैबलेट, व्हाई देयर इज नीड ऑफ फिल्म कोटिंग। मैंने आपको बोला है कि आपका अगर टैबलेट है, सिंपली कॉम्प्रेस टैबलेट, वो बहुत ही इंटेंस बिटर है। मान लीजिए कि आपका एट्रोपिन का टैबलेट है, एट्रोपिन, या फिर आपका स्कोपोलामाइन का टैबलेट है, वो इतना इंटेंसली बिटर होता है कि जब आप मुंह पे जिप आपकी जो टंग है उसके ऊपर टैबलेट रखेंगे तो आपको पूरे मुंह में बिटरनेस आएगा। ओके, और आप टैबलेट लेने के लिए आप उतना मतलब उतना कन्वीनियंट फील नहीं करोगे। सो फॉर द पैलेटेबिलिटी एंड फॉर द पेशेंट कॉपरेशन, सो यू नीड टू कोट दैट टैबलेट बाय यूजिंग फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग क्या करेगा? उसका टेस्ट मास्क करेगा, क्योंकि फिल्म होता है उसके टैबलेट के ऊपर एक छोटा, उसके फिल्म की वजह से क्या होगा, जो अंदर का ड्रग है वो देयर विल बी नो entry of moisture inside the tablet. There will be no effect of other environmental parameters on the tablet. There will be masking of tablet taste, color, odor. How entry coating is done? So what are the entry coating polymer? Film coating polymers. नॉन एंट्रिक फिल्म कोटिंग, मतलब ये जो है ये सिर्फ फिल्म कोटिंग पॉलीमर से, एंट्री कोटिंग नहीं। सो मिथाइल सेलुलोज यूजफुल पॉलीमर फॉर एक्वियस फिल्म, लो विस्कोसिटी ग्रेड इज बेस्ट। मिथाइल सेलुलोज उसको फिल्म कोटिंग पॉलीमर बोल के यूज कर सकते हो। मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज इनसोल्युबल इन वाटर, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है जीपैट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ which one of the following cellulose derivative is insoluble in water? So ethyl cellulose is insoluble in water and GIT fluids, नॉट यूज्ड अलोन, अकेले में यूज नहीं करना है इसको। इथाइल सेलुलोज याद रखो, इनसोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट वन इज HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। सो इट इज an excellent film former soluble in cold water, GIT fluid, polar organic solvent and lower alcohol. It is also a film former. Okay, and there was a direct question on GPAT 2019. The following is used as a film former in the फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट, और ऑप्शन में एक ऑप्शन था HPMC, बाकी के ऑप्शन अलग थे, ठीक है। तो जीपैट 2019 का पेपर देख लो आप, ये क्वेश्चन आएगा। तो रिमेंबर HPMC इज आल्सो फिल्म फॉर्मर। HPMC ethyl cellulose, methyl cellulose also film former. Out of this, methyl cellulose is used for aqueous film, ethyl cellulose is insoluble in water, and HPMC is a excellent film former. Most of the time HPMC यूज करते हैं। Next one is the sodium carboxymethyl cellulose, sodium CMC. So presence of moisture in the solvent is not a problem, it can be used. So it is also used as a film forming polymer. Then povidone, polyvinyl pyrrolidone. It is hygroscopic if used alone. अगर अकेले में इसको यूज करेंगे तो वो moisture absorb करेगा. It will be thickened during drying, soluble in the water, GIT fluid and alcohol, isopropyl alcohol.
ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका फीचर्स है। नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर इज अ polyethylene glycol PEG. It is mainly used as a plasticizer and film former, soluble in water, GIT fluid and organic solvents. ठीक है, so these are the non-enteric coating film former. Non-enteric coating मतलब क्या? It is not used for the entry coating. Entry coating क्या होता है कि टैबलेट ब्रेक नहीं होगा स्टमक में, डायरेक्टली ब्रेक होगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, तो पीएच डिपेंडेंट होते हैं वो एंट्री कोटिंग पॉलीमर। सो इट इज अ फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स, याद रखो, फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स और नॉन एंट्रिक फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स। नेक्स्ट वन इज अ कोटिंग पॉलीमर्स, ये इंपॉर्टेंट है, वो पिछले वाला भी चार्ट इंपॉर्टेंट था, अभी ये भी चार्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर थे पहले, जैसे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, देन पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, इथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। नाउ एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर, एंट्रिक कोटिंग मतलब क्या? सो दीज कोटिंग विल नॉट बी डिसॉल्व इन द स्टमक, दे विल बी डिसॉल्व इन द intestine only. First one is a shellac. So it may delay the release of drug. मतलब ये आपने यहाँ पे भी देखा था, सील कोटिंग में भी देखा था, it will prolong the disintegration and dissolution. So it may delay the dissolution or release of drug too long. High batch to batch variability will be seen in the shellac. It is soluble at the pH 7. मतलब एसिडिक पीएच पे ये soluble नहीं है, जैसे ही बेसिक पीएच में जाएगा ड्रग को रिलीज करेगा। So that's why shellac is used as an entry coating polymer. But nowadays other alternatives are there, like cellulose acetate phthalate, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, cellulose acetate phthalate, थैलिक एसिड ड्यूटी है। So it is dissolved in the distal end of duodenum, intestine में dissolve होगा, require the presence of plasticizers such as triacetine or castor oil. It is a somewhat hygroscopic and dissolve in the acetone ethyl acetate IPA if pH is less, if pH is 6 point pH is 6, अब 6 pH के आगे डिजोल्व होगा वो, ठीक है, pH से 6 pH के आगे डिजोल्व होगा। 6 pH कहाँ पे आता है आपका? डिओडिनम में, इंटेस्टाइन में आता है। स्टमक में pH क्या होता है? कम होता है, इट इज अराउंड 2 to 4. Polyvinyl acetate phthalate PVAP. So PVAP is dissolved in the whole length of duodenum, pH more than 5, ठीक है, जहाँ पे pH ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये पॉलीमर डिसॉल्व होगा, लेकिन एसिडिक एनवायरनमेंट पे ये पॉलीमर डिसॉल्व नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई दीज पॉलीमर्स आर यूज्ड एज एंट्री कोटिंग पॉलीमर। मतलब मान लीजिए कि आपका एक टैबलेट है कि जो मान लीजिए एक एसिटिल कोलिन का मॉलिक्यूल है, उसका टैबलेट है, आपने वो टैबलेट बन लिया एसिटिल कोलिन का टैबलेट, अगर वो टैबलेट एज इट इज देंगे तो एसिटिल कोलिन पूरा के पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, कहाँ पे? आपके स्टमक में, ड्यू टू एसिड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसके आपको तो एसिटिल कोलिन देना है, लेकिन आपका अगर हाइड्रोलाइसिस हो गया उसका स्टमक में, तो उसका यूज क्या है? उसका बायोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगा, उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं आएगा और उसका एक्शन भी नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको कि वो जो टैबलेट है वो क्या करना है? एंट्री कोटिंग करना है उसको, मतलब ऊपर से कोटिंग करो उसको, किससे? सेलुलोज एसिड थैलेट या फिर आपका ये जो एसपीएमसी है ये, इसके ऊपर कोट करो। अगर इसका कोटिंग करेंगे तो वो टैबलेट स्टमक में तो जाएगा, स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगा, क्योंकि वो पॉलीमर एसिड रेजिस्टेंट है। तो वो कब डिसइंटीग्रेट होगा टैबलेट? जब वो स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, क्योंकि वहाँ पीएच चेंज होगा। स्टमक में पीएच होता है आपका 2 to 4, इंटेस्टाइन में पीएच होता है आपका 7 से आगे 7 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज HPMC dissolves in the proximal end of duodenum, ठीक है। ये भी यूज करते हैं एंट्री कोटिंग के लिए, ये फिल्म कोटिंग के लिए भी यूज करते हैं, एंट्री कोटिंग के लिए भी यूज करते हैं, याद रखो, डिपेंडिंग अपॉन द, इसका दो टाइप होता है, दो ग्रेड होता है। देन नेक्स्ट वन इज मिथाइल एक्राइलेट्स, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट्स, पॉलीमिथाइल एक्राइलेट्स, ओके। सो उसका कॉमन नेम है यूट्राजिट। सो पॉलीमिथाइल एक्राइलेट्स का कॉमन नेम है यूट्राजिट। तो इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था। सो यूट्राजिट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, तो पॉलीमिथाइल एक्राइलेट, ओके। So Ultrazit L is there, Ultrazit S is there,
ओके। सो यूट्राजिट यल जो है वो दैट विल बी एक्टिव, दैट विल एक्टिव आफ्टर pH 6, मतलब यूट्राजिट यल जो है वो रिलीज करेगा आपका ड्रग जहां pH 6 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। यूट्राजिट यस जो है वो पीएच जहाँ पे 7 होगा या फिर उसके से ज्यादा होगा वहां पे वो रिलीज करेगा। ठीक है। मिक्सचर ऑफ बोथ यूट्राजिट यल एंड यूट्राजिट यस, they can provide entry coating as well as sustained release. Okay, याद रखो। Some commonly used film plasticizer like phthalate esters, citrate esters, triacetylene, propylene glycol, polyethylene glycol, glycerin, ये important नहीं है। Now next one is a, देखता हूँ कितना बचा है एक बार। 3 स्लाइड बचा है, एक शॉर्ट में ले लेता हूँ, टैबलेट खत्म हो जाएगा। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ कोटेड टैबलेट, टैबलेट कोटिंग का इवेल्युएशन कैसे करेंगे, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। जैसे एडेजन टेस्ट हो गया, वो एडेजन टेस्ट हो गया, वो उससे क्या मेजर करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ योर फिल्म। फिल्म टेंसाइल स्ट्रेंथ is measured by adhesion test, and film tensile strength tester is used for that. Then diametral crushing strength, diametral crushing strength, for that you have to use tablet hardness tester. ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूँ, उसको आपको समझ में आएगा। स्टेबिलिटी स्टडीज की, जो स्टेबिलिटी स्टडीज मेजरमेंट ऑफ वेट के प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटेक्शन गिवन बाय फिल्म। देन विजुअल इंस्पेक्शन लाइक क्वालिटी ऑफ कोटिंग, कि प्रॉपरली कोटिंग हुआ या नहीं, वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन एक्सेप्ट फॉर कंट्रोल रिलीज कोटिंग। अगर कंट्रोल रिलीज कोटिंग है तो उसमें ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, अगर एंट्री कोटिंग है तो उसमें ये टेस्ट एप्लीकेबल है। देन इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट फॉर फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग के लिए कौन सी इवेल्युएशन कर सकते हो, ये एक इवेल्युएशन कर सकते हो। फिल्म कोटिंग का मेन इंपॉर्टेंस, मेन रीजन क्या है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर वेपर्स और वाटर in the tablet. So water vapor permeability you can check, okay, in the film coated tablets. तो उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे तो नहीं मिला है, अब अगर आपको मिलेगा तो पढ़ लो लिटरेचर में। Then film tensile strength evaluated by applying the known amount of force at a constant rate. These are the evaluation parameter for coated tablet in addition to the parameter what we have seen in the previous। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है नॉर्मली वो तो एप्लीकेबल है, उसके एडिशन में कोटेड टैबलेट के लिए कौन से एप्लीकेबल टेस्ट है तो वो अपन ने देखा अभी, एडेजन वगैरह ये सब। नेक्स्ट क्या है, फिल्म डिफेक्ट। फिल्म डिफेक्ट, फिल्म कोटिंग में क्या डिफेक्ट आते हैं, जैसे स्टिकिंग एंड पिकिंग आता है, जिससे बिकॉज ऑफ ओवर राइटिंग और एक्सेसिव फिल्म टिकिंग। अभी ये कोटिंग कहाँ पे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे पैन कोटिंग होता है, कोटिंग पैन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मशीन भी होते हैं कोटिंग मशीन, वो भी आप पढ़ लेना, बहुत नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। पिकिंग एंड पिकिंग होता है, रफनेस होता है, ऑरेंज पिल इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डायरेक्टली ये लेता हूँ, ये आप बाद में पढ़ लेना। ऑरेंज पिल इफेक्ट क्या होता है, सो inadequate spreading of coating solution before drying will causes a bumpy or orange pill effect on a coating। क्या होता है कि जब आप कोटिंग सॉल्यूशन होता है, सो inadequate कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रेइंग, अगर inadequate spreading of coating solution before drying of a tablet causes a bumpy or orange pill effect on a coating, कि मतलब कोटिंग पैन में बहुत सारे टैबलेट होते हैं, उसके ऊपर स्प्रेइंग करते हैं कोटिंग सॉल्यूशन का, और वो कोटिंग पैन रोटेट होते रहता है। तो क्या होता है कि अगर एडिक्वेट स्प्रेइंग नहीं हुआ वो कोटिंग सॉल्यूशन का टैबलेट के ऊपर, और टैबलेट रोटेशन का जो ड्रम का स्पीड है वो ज़्यादा है, तो उसके उसकी वजह से इनएडिक्वेट कलर जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो स्प्रे होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि कोई टैबलेट के ऊपर आपको ज़्यादा कोटिंग सॉल्यूशन मिलेगा, कोई टैबलेट के ऊपर आपको कम मिलेगा, तो बम्पी और ऑरेंज पिल
effect will be seen on the coating. So that is nothing but the orange pill effect. And orange pill effect is not a tablet punching defect. It is a tablet coating defect. Remember, orange pill effect is a tablet coating defect. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं. And what is the remedy to avoid this thinning of solution with additional solvent? जो आपका कोटिंग सॉल्यूशन है वो अगर ज़्यादा विस्कस है तो उसकी वजह से भी ऑरेंज पिल इफेक्ट मिलेगा आपको. तो उसको थिन करो, मतलब उसमें उसको विस्कोसिटी कम करो. यू हैव टू ऐड द सॉल्वेंट इन दैट. आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल द, क्योंकि अभी मेरा एनर्जी खत्म हो गया. उसमें ब्रिजिंग एंड फिलिंग मतलब क्या होता है इसमें कि अगर कोटिंग सॉल्यूशन है तो स्प्रे करते हैं आप, तो क्या होता है इंडिविजुअल सिंगल टैबलेट शुड बी कोटेड सेपरेटली इन द पेन. बट उस टाइम पे क्या होता है इन आप उसमें ड्यू टू इनप्रॉपर ड्राइंग, ड्यूरिंग ड्राइंग द फिल्म में श्रिंक एंड पुल अवे द शार्प कॉर्नर ऑफ टैबलेट. दो टैबलेट में के साथ चिपक जाएंगे, उसको बोलते हैं ब्रिजिंग एंड फिलिंग. तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें प्लास्टिसाइजर का कंटेंट बड़ा हो इसमें कोटिंग सॉल्यूशन में, जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और सॉर्बिटॉल है. प्लास्टिसाइजर इंक्रीज करो कोटिंग में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ब्लिस्टरिंग, हैजिंग फिल और डल इफेक्ट, कलर वेरिएशन, पैकिंग, ये सब ऑथर डिफेक्ट्स है फिल्म कोटिंग के. सो इट वाज ऑल अबाउट द योर टुडेज लेक्चर. आपको अगर ये थोड़ा सा लास्ट के 2 स्लाइड जो है अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बुक में दिया है, उसमें से पढ़ लो. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टैबलेट. तो टैबलेट कोटिंग वगैरह सब कुछ जितना इंपॉर्टेंट है टैबलेट के बारे में सब कुछ लिया है. इतना डिटेल में कौन सा भी क्लास नहीं लेता, क्योंकि ये मेरे पास मटेरियल रेडी है, इसलिए मैं इतना डीप में ले पाया हूँ आपको. ये सब मेरे बुक में है, इसलिए पूरा का पूरा टैबलेट आपका फिनिश हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद में आपका बचता है कैप्सूल.